محترم حاضرین، تمام طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء آیت نمبر 23 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور مجھے اس موضوع پہ مکلف کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، آج امت مسلمہ میں جو اولاد کے اندر والدین کے سلسلے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے ازالے کے لیے یہ اللہ کا کلام کافی ہے۔ اگر ایمان اور خشیت کے ساتھ اس پہ غور کرتے ہیں، میرے دوستو، آج والدین سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہیں، ماں باپ اگر ذلت و رسوائی 99% دکھ اگر جھیل رہا ہے اپنی اولاد سے، اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر سورہ اسراء آیت نمبر 23 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حق کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ، عدل فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ آیت چیخ چیخ کر کے دعوت دے رہی ہے، اور بالخصوص امت مسلمہ کو اس پہ غور کرنی پڑے گی کہ آج کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان شرک کا شکار ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 106 پہ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لفظ اللہ رب العالمین نے اس پہ استعمال کیا ہے کہ مسلمان اکثر کلمہ بھی پڑھے گا، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مشرک ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام کہہ رہا ہے۔ آپ میرے دوستو، وَقَضَ رَبُّكَ کی میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ کلمہ بھی پڑھیں گے مشرک ہوں گے۔ اب مشرک کیسے ہوں گے؟ چند لمحے میں اس کو اجاگر کرنا جو ہے ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ قبروں سے مزاروں پہ جا کر کے استعانت پیش کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اور جا کر کے یہی نہیں بلکہ جا کے کہتے ہیں ہمارے اولیاء کرام نے ہمیں بلایا ہے، ہم نے درخواست لگا دیا ہے۔ اللہ رب یہ عبادت ہے، ان سے جا کے طلب کرنا، ان سے مانگنا۔ قرآن کے متعدد جگہوں پہ حتیٰ کہ کوئی رکوع نہیں باقی ہوگا قرآن کا جس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے متنبہ نہ کیا ہو، اسے منع نہ کیا ہو۔ لیکن کان کھول کے سن لو، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ مزاروں کی، قبروں پہ، آستانوں پہ جا کر کے کسی اپنی مشکلات کو پیش کیا، اپنے پریشانی کو پیش کیا، اپنی بیماری کو پیش کیا، اس سے یہ ارادہ رکھا، یہ اس سے وہ امید وابستہ کیا کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، اور یہ بزرگ ہمارے تمام مشکلات کا حل کرنے کا جو ہے وہی ذریعہ ہے۔ تو قرآن کا چیلنج ہے، اللہ کا کلام یہ چیلنج چیخ چیخ کے پکار رہا ہے۔ وہ مشرک ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ ڈال دیا جائے گا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ مشرک ہوگا۔
میرے دوستو، میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تفسیر میں والدین کی صرف آنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اس کے بعد والی آیت، اما یبلغوا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی جب اللہ کے والدین آپ سے کلام کریں تو ان سے نرمی سے بات کریں، ان سے محبت سے پیش آؤ. اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے ماں باپ میں سے یا سنگل ہو، ماں ہو یا باپ ہو، دونوں ہو یا دونوں میں سے ایک ہو، عندک الکبر، بڑھاپے میں ان سے تم حسن سلوک سے پیش آؤ. لیکن آج اس کے برعکس ہے، آج اس کے اپوزٹ میں ہے. 99% امت مسلمہ کے اندر ایک اولاد اپنے جو ہے باپ کی کثرت سے ذلت و رسوائی جو ہے برداشت کرتا ہے. میرے دوستو، میرا جو ہے میرے سامنے ایک دوست تھا میرا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیار تھا اس سے، لیکن وہ میرے سامنے اس کی جو ہے بری حرکت موجود ہے، اور ایسے تمام لوگ ہیں. اس کے بعد آج تک 4 سال ہو گئے اپنے باپ سے بات نہیں کیا. سعودی فارن کنٹری میں روزی حاصل کر رہا ہے، بیوی کو لے کے رہ رہا ہے. یہ سنگل آدمی نہیں ہے، ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنے والدین کو پہنچ رہا ہے. اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اف تنهرهما. میرے دوستو، اللہ نے کیا کہا؟ اف تک نہ کہو، اپنے باپ والدین کو ہوں. ارے اس طرح بھی کہنے کا رائٹ نہیں ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. لیکن ایک پڑھا لکھا مسلمان اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں، کیا مسلمان ہو کے کہنے کا بھی دعویٰ رکھتا ہے، اور باپ کی طرح سرکشی سے بات کرتا ہے، ایسے بات کرتا ہے کہ گویا کہ یہ خود باپ بنا بیٹھا ہوا ہے، اپنے باپ کو بیٹے کی درجے میں دے کر کے اس طرح کلام کرتا ہے. میرے دوست، اتنی بڑی جو ہے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور یہ والدین کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اگر ان کے والدین، ان کے جو ہے بچے جسے پیش آتے ہیں، ان کے لڑکے کے لڑکے کو اگر نہ جو ہے ساتھ میں لے جائے، ہوٹل میں نہ لے جائے، ساتھ میں نہ لگائے، تو شاید اس باپ کو کھانا نہ ملے گا، کھانا نہیں ملے گا. میرے دوستو، اللہ نے فرمایا جب وہ بڑھاپے کھو جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اس کے علاوہ انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما. ان سے جب بات کرو تو بہت ہی محبت، الفت، انسیت سے بات کرو. لیکن میرے دوستو، آپ اس کا ریڈ کرو، آپ اس کا تجربہ کرو، آپ خود اپنے گھر میں چھانٹ کے دیکھیں ہم اپنے باپ کس طرح بات کرتے ہیں. یقیناً اگر یہی میرا جو ہے ہمارا طریقہ رہا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. اور آ رہا ہے میرے دوستو، لیکن ہمارے جو ہے آج تک پٹا نہیں کھل رہا ہے. ہم تمام بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں، ہم رسوائی اور ذلت کھیل رہے ہیں، لیکن ہم یہ خاص نہیں کرتے ہیں. یہ اپنے والدین سے نافرمانی کا نتیجہ. وقل لهما قولا کریما واخفض لهما. اللہ نے فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ نے فرمایا جب جو ہے اپنے اور جب ان سے بات کرو، واخفض لهما جناح الذل، جب اپنے عاجزی، اپنے انکساری سے بازو کو جھکاتے ہوئے ان سے کلام کرو، ان سے بات کرو. میرے دوستو، آپ کو ہم غور کریں کیسے بات کرتے ہیں اور ہمارا انداز کیسا ہے. میرے دوستو، اللہ رب العالمین فرمایا، اللہ فرماتا ہے وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ رب العالمین فرمایا اور مرنے کے بعد بھی، دنیا میں بھی یہ کہو، دعائیں کرو. اللہ نے کہا حکم ہے، اے رب العالمین، جس طرح ہمارے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پرورش کی، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا، ہمیں ہماری پرورش کی، ہمیں تمام طرح کی پریشانی کو جھیل کر کے تمام جو ہے
चोरी बेईमानी करके कितने गुनाहों को जो है अपने सर पे लाद करके जो है परवरिश किया है। लेकिन अल्लाह ने कहा तुम दुआएं करो, ऐसे दुआ करो, तरीका और सलीका बताया अल्लाह ने फरमाया है वकुर रब्बी हम्हुमा तब मेरा बैन सगीरा, ए रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन को तू जो है माफ फरमा दे, हमारे वारिस को रहम फरमा दे हमारे ऊपर, जैसे इन्होंने हमारे ऊपर बचपन में जो है रहम फरमाया था, हमारे बचपन में हमें पाला था, बड़ी मोहब्बत से पाला था। एक माँ अपने बच्चों की किस तरह परवरिश करती है, जब बच्चा पेशाब कर देता है, जब बच्चा पेशाब कर देता है तो वो माँ अपने बच्चे को पखाना कर देता है, तो उस पखाने वाले बिस्तर पर माँ जाके लेट जाती है और उसके बाद जो है बच्चे को गर्म बिस्तर में लेटा देती है मेरे दोस्तों। और जब वही बच्चा जवान हो जाता है तो जब मिठाई लेके आता है तो चुपके से अपने बीवी को जाके पकड़ा देता है, चुपके से अपने बीवी को पकड़ा देता है मेरे दोस्तों। ये हालत है आज मुसलमानों के अंदर। एक बात और मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा जो है क्या जो है, बल्कि अगयार रिलीजन के मानने वाले, मज़ाहिब के मानने वाले, रिलीजन अध्ययन के फॉलोअर जो है, हर अध्ययन के मानने वाले हैं, हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा उल्फत रखते हैं, हमसे ज्यादा उनके खर्च करते हैं। लेकिन हमारा जो मामला है, कलमा पढ़ने के बावजूद, इस्लाम में दाखिल होने के बावजूद, मुसलमान कहलाने के बावजूद भी इसके बरक्स है, इसके अपोजिट है मेरे दोस्तों। ये हमारे अंदर जो है बहुत बड़ी कोताही है और इसका अंजाम बहुत ही भयानक और खतरनाक होगा मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। एक बात और मैंने कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, वक्त मुझे मुकल्लफ किया गया है, हमारे मोहतरम जो रूह रवां है उन्होंने मुझे 15 मिनट का मौका दिया है, मुझे 10 मिनट के अलावा 5 मिनट और बढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं उसका ख्याल करके जो है खत्म करूंगा इंशाअल्लाह नसीब। तो कहना यह है मेरे दोस्तों, अपने वालिदैन का मकाम कितना है। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होता है और वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मैं जहाज में जाना चाहता हूँ। हमारे अकरम फरमाया तेरी वालिदा जिंदा है, तेरे माँ बाप जिंदा है? हाँ। कहा जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो, जाओ अपने माँ बाप की परवरिश करो, जहाज से बड़ी फजीलत तुम्हें वालिदैन की खिदमत में मिल जाएगा। लौट गए, दोबारा फिर कुछ दिन के बाद आए, फिर हमारे आका ने ही फरमाया, तीसरी बार फिर लौट करके आए, फिर आपने फरमाया जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो, वो बुढ़े हैं, वो कमजोर हैं, उनकी खिदमत करो, तुझे जिहाद से ज्यादा वक्त बाद मिल जाएगा। ये मकाम है वालिद जो औलाद की जो है, अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, अपने माँ बाप की जो है वो खुश रखेंगे, अपने वालिदैन से नरमी से बात करेंगे और जो है अपने बाजू को छुपा के बात करेंगे और कभी जो है उफ्कत नहीं कहेंगे, छिड़केंगे नहीं, उनका ये मकाम होगा। और क्या करना है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल-अव्वाबीन गफूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। एक मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये आयत में क्या कहा है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारे दिलों में जो बीवी से ज्यादा मोहब्बत है और माँ से मोहब्बत कम है, इसका ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ऐसे दुनिया में होंगे, ऐसे लोग पैदा होंगे जो बीवी ज्यादा मोहब्बत रखेंगे, माँ से मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन जाहिरी तौर पर जो है कहेंगे हाँ माँ तुझे बहुत प्यार करता हूँ, माँ तुझे मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत को जो है उनके दिल की गंदगी औलाद के अंदर जो है कि अंदर बीवी से मोहब्बत हो और उसके बाद जो है माँ से मोहब्बत ना हो। अल्लाह ने इसको कह दिया है रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल-अव्वाबीन गफूरा। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारे दिलों की बात को जानता है, तेरा परवरदिगार जानता है। अगर तूने भी ऐसी किया कि दिल में मोहब्बत जो है माँ से कम हुई और बीवी से ज्यादा हुई, इसका हिसाब कर लूंगा, इसका मैं नोटिस ले लूंगा। अल्लाह ने इस तरह इसको मुकर्रर कर दिया है। तीसरी बात मेरे दोस्तों, सूरह जो है लुकमान की आयत है, अनिश्कुल्ली वलिवालिदैका इलैयल मसीह, ये सूरह लुकमान की आयत है। इसी वालिदैन के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अनिश्कुल्ली वलिवालिदैका इलैयल मसीह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह की जो है, अल्लाह के हुक्म की पासदारी करो और उसके बाद अपने वालिदैन की बात को मानो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अल्लाह ने अगर ऐसा नहीं करोगे, इलैयल मसीह,
तुम्हें लौट के मेरे पास आना है। अल्लाह की धमकी है। और ये पूरी दुनिया के जो जालिम औलाद है उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है इलैहिल मसीह, तुम मेरे पास आओगे, हम तुझे निचोड़ देंगे, तेरी नस्ल को तोड़ देंगे। जैसे तुमने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाया है, हम तेरी नस्ल को तोड़ देंगे। क्या आयत पुकार रही है, यह के पुकार रही मेरे दोस्तों। आप तो अल्लाह ने धमकी दिया है। अगर कोई इंसान किसी को धमकी दे दे, कोई पहुंचा जैसी DIG और कोई बड़ी धमकी दे तुझे इनकाउंटर कर दूंगा, तो इंसान का पजामा गीला हो जाएगा। और अल्लाह धमकी दे रहा है, यहाँ सुनने के बाद जो है उसे एहसास नहीं होगा, पता चला जो है उसके बाद कुरान पर ईमान नहीं है, अल्लाह के कलाम पर ईमान नहीं है। ये इस बात की दलील है मेरे दोस्तों। अल्लाह कह रहा है ये लोग मसीह जब लौट के मेरे पास आओगे तो हम इसका जहर चुकता करेंगे और तुम्हारी नस्ल को तोड़ देंगे। इसी बात कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कहना लाजिम है, उसी वक्त रब्बुका के सिलसिले में जुड़ा हुआ है मेरे दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर पर तशरीफ ले गए, 3 बार आपने आमीन फरमाई। सहाबा कराम ने सवाल किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आमीन फरमाई, किसी ने आपको आवाज नहीं दिया? कहा हाँ, जिब्रील तशरीफ लाए थे। जिब्रील ने कहा जो रमजान का महीना आ जाए और रमजान को रोजा रख करके जो है अपने गुनाफी की जो गुनाहों की माफी तलाशी न करने, वो जैसा नालायक और नसीब कोई नहीं है। और दूसरे मिंबर कदम रखे तो आपने फरमाया जो है, जिब्रील ने कहा मैंने आमीन कही। जिब्रील ने फिर कहा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन करके दरूद न भेजे वो बहुत ही नाकारा बदनसीब है और सलीम है। तीसरी बात हमारा कर फरमाया कि जो वालिदैन की जिंदगी पा करके जन्नत में हासिल करने और जैसा बदनसीब और जैसा नालायक और जैसा घटिया इंसान को भी इसमें जमीन पर कोई नहीं है मेरे दोस्त, ये उसका अंजाम ही होगा। और बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, इसकी बात एक बात और कहना चाहता हूँ, वालिदैन की खिदमत दुनिया में खैर अदियान के मानने वाले हैं, रिलीजियस और मज़ाहिब के फॉलोअर मानने वाले हैं, इतना मानते हैं कि अपनी माँ बाप के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे रहे हैं। लेकिन एक चीज उनके पास नहीं है, इस पे मैं गौर तलब चाहता हूँ, आप गौर करिए इस बात में जो मैं कहने जा रहा हूँ। इसी वक्त रब्बुका की बुनियाद पर अनिश्कुल्ली इसी आयत की मैं तफसीर करना जो है बयान करना चाहता हूँ। खैर लोग बहुत कदर करते हैं अपनी वालिदैन की, बहुत मानते हैं, हद तक अपने वालिदैन के लिए अपनी पूरी जो है दौलत निछाड़ के तैयार है, लेकिन उनके पास तौहीद नहीं है, रिसालत नहीं है। क्या जन्नत में जाएंगे? तमाम हमारे वरमाए किराम बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं और आप भी पहले को जानते होंगे। अगर वो अपने माँ बाप को कितना भी नशावर कर दे और उसमें तौहीद ना हो, उसमें तौहीद और रिसालत ना हो, कलमा पहले तौहीद ना हो और माँ बाप की इतना खिदमत कर दे कि पूरी दौलत का दरिया बहा दे, क्या जन्नत में जाएगा? ये सवाल कर रहा हूं, क्या जन्नत में जाएगा? बहुत लोग कहते हैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत कर दो, ठीक है, खिदमत करना लाजिम अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह ने उसने खिदमत से पहले अपनी बात उजागर किया है तौहीद को। इसे बड़ी बात में कहना मैं जरूरी समझता हूं। वो आदमी जो अपने वालिदैन को खून दे करके जो है परवरिश कर दे, तौहीद ना हो, जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए वक़द रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि ihसाना। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तौहीद बयान किया है और पूरे कुरान में भी कहा अनिश्कुल्ली बोले वालिदैन का इलैहिल मसीह है, पहले मेरी हुक्म को मानो, पहले मेरे तौहीद को मानो, पहले मुझे एक मानो और अल्लाह मेरे अलावा किसी के सामने सर ना झुकाओ, तब जाके जो है वालिदैन की खिदमत तुम्हें कारामद होगी। नहीं तो सब बहुत ऐसे गैर लोग, बहुत ऐसे गैर मसालक के लोग बहुत मानते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, लेकिन जाएंगे जहन्नुम में। इसलिए दोनों नाज़िल हैं। सबसे पहले तौहीद पर हमारा ऐसा अकीदा हो, हमारा ईमान ऐसा हो कि अल्लाह के फरमाते हैं, सुनन निसई इब्न माजा की हदीस है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन व इन कुतिलता हुरिता वला तुक़तलना
वलिवालिदैक, अल्लाह भी हदीस फरमाते हैं वला तउकुन्ना वलिवालिदैक, इसके अलावा वलाइन अमरका और वाइन तखरजा वाहलका वो मानेगा। ये हदीस है। अगर पहले फिर यहां तौहीद है, शिर्क ला तुसिब बिल्लाहि शैआ व इन कुतिलता हो रुकता वला तउकुन्ना वालिदैका, कि आप अपने माँ बाप अल्लाह के साथ शरीक न करो। फिर अल्लाह ने कहा अपने वालिदैन की बात को ना काटना, कभी हरगिज़ के खिलाफ उनकी वह बात को जो है न करने की खिदमत करना। लेकिन यहाँ तौहीद पहले कहा गया है। कुछ भाई ऐसे ना सुन ले कि जो लोग मज़ारों पे कब्रों पे और जा करके जो है इस्ताअनत और मदद तलब करते हैं, ये कुरान के एक नहीं पूरे कुरान के जितने रुकू हैं उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया जिसने कितना भी बाकी खिदमत कर ले, दुनिया पूरी दुनिया लुटा दे, अगर उसने अल्लाह के अलावा किसी जो है कब्र और जो है मसाल बिठा करके जो है मदद तलब किया और ये कह दिया कि आप हमारे मुफ्ती कुशा है, हाजत रवा है, वो फिराने जहन्नम खालिदीन फीहा, वो जहन्नम में हमेशा तबस्सी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के तौहीद को मानते हुए जो है अपने वालिदैन की खिदमत करो। इस आयत की जो है अब मुझे मेरा वक्त था, मेरा वक्त हो चुका है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह की खिदमत करने वाले दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब और रिलीजन्स अध्ययन के मानने वाले हैं, लेकिन मेरे दोस्तों वो तौहीद नहीं है। आप पूरी कुर्बानी दे दो, अल्लाह जहन्नम में ठोक देगा और डाल देगा। अल्लाह ताला से दुआ है मौला करीम हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद पर अपने आप को कुर्बान होने का हौसला अता फरमाए। उसके बाद हम तमाम मुसलमानों को अपने वालिदैन की जो है और वालिदैन से हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हम तमाम मुसलमान भाइयों का खात्मा हो तो तौहीद पर हो, ईमान पर हो और अपने वालिदैन की खिदमत करते करते अल्लाह रब्बुल आलमीन